के सदस्य सुरभि जी, मालती जी, और आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा लंबे समय से बच्चे कर रहे थे। हमारे बच्चे समय परफेक्ट समय के अनुसार सपने देख रहे हैं, बुन रहे हैं। उन सपनों को साकार रूप वो कैसे दें, उस मंजिल, जिस मंजिल की वो तलाश कर रहे हैं, उस मंजिल तक वो कैसे पहुंचे, इन सब जिज्ञासाओं की आज जिज्ञासाओं को शांत करेंगे आज सत्येंद्र जी। तो सत्येंद्र जी को बुलाने से पूर्व मैं सुरभि से अनुरोध करूंगी कि सुरभि सर का संक्षिप्त परिचय दे। सुरभि। Thank you, ma'am. Welcome, sir. On behalf of Enabling Unit Miranda House, I would welcome you. Satyendra, sir, who is a zealous motivational speaker and keeps addressing seminars and gatherings all over the country. He is ardently committed to make substantial change in society by enacting people to realize their true potentials. He takes a keen interest in art of debating, deliberation, avid reading, public speaking. He believes in uniqueness and irreplaceability of every individual with immeasurable human potential. Sir supposes life to be a constant celebration which should be lived by incessantly striving to count blessings rather than cribbing and radiating negative energy. For him, everything that we do in life, everything that we get, we achieve, we earn, every position, signature, stature, title is just a means. It's a means to the ultimate goal, the grand goal of life, the meaningful, substantive death. Sir lost his eyesight in his very childhood due to a wrong injection and has used braille script and screen reading softwares to complete his studies. Sir went to St. Stephen College at the University of Delhi. He also went to do his master's and MPhil from JNU. Sir taught at University of Delhi for 4 years as assistant professor political science. And in 2018, he cracked civil services exam and ranked 714 and is currently is a budding Indian civil servant. Uh, so, in such a situation where we all are every time living in perpetual fear of losing someone near and dear, we have our students who are uh, who have their ambitions and they want to achieve something like you. So, I would welcome you, sir, to please motivate them and also tell them the strategies to turn their dreams into reality. Thank you, sir. Shall we go for a quick introduction of all the participants so that we know where do we stand? I presume all of you are undergraduates. Yes, sir. All students are undergraduate students. Right. So can we have a brief introduction? Like it will take 10 seconds each. It will take like 5 to 6 minutes. So you can start from Avidha. You can start, Avidha. Hello, good morning, sir. Sir, my name is Avidha Sharma. I am pursuing BA program from Miranda House College. My combinations are political science and geography. Right. Mute and Kashish next. Kashish. Good morning, sir. My name is Kashish Gupta and I am pursuing English Honours from Miranda House College. And this is my third year. Okay. Mute and next Purva. Preeti Rai, you can start. Good morning, sir. My name is Preeti. I am from BA program and I am pursuing political and history. Anjali Negi. Good morning, sir. My name is Anjali Negi and I am pursuing BA program and my disciplines are history and pol science. Thank you. Anshika. Good morning, sir. I am Anshika, pursuing mathematics honors from Miranda House, and this is my first year. Arpita.
sir. This is Arpita. I am a first year student and I am pursuing BA Honors History. Deba Shriyal. Divya Raj. Good morning, sir. I am from Gujarat. I am third year from St. Xavier's College in BA in English Honors. Okay, thank you. Kiran Singh. Good morning, my name is Kiran. I am from History Department. Komal. Good morning, sir. I am Komal. I am pursuing BA program. My discipline Political plus Hindi. This is the first year. Okay. लवकुश. मैम मेरा नाम लवकुश है. मैं स्टडी फैकल्टी ऑफ लॉ सेकंड ईयर. ओके. मनु. Good morning, sir. Sir, I am Manu Garg from Hindu College. My department is BA program and my disciplines are History and Political Science. Mehak. Good morning, sir. I am Mehak and I am pursuing Hindi honors and this is my third year. Muskan. Meanwhile, Nagraj, you can start. Okay, ma'am. Hello everyone, good morning. I'm Nagraj Star. I'm studying in second year BA at St. Xavier's College, Mumbai. My subjects are English literature, history and political science. Najwa. My name is Najwa. I'm pursuing BA program from Miranda House. My core disciplines are economics and political science and I'm a first year student. Okay, thank you. Priyanka. Good morning, sir. I am Priyanka Sharma. I am pursuing BA Honors Political Science from Miranda House and I am a first year student. Okay, Priyanka. Ritik. Good morning, everyone. I am Ritik Goel, currently pursuing BA program from Hindu College. My disciplines are history and political science, and this is my second year. Shimpi. Next, Shimpi. Good morning, sir. I'm Shimpi from Miranda House and I'm doing Hindi honors third year. Sunil. Good morning, sir, and all of you. I'm Sunil. I'm pursuing English honors from Ramjas College. Right now, I'm in second year. Thank you so much. Okay, thank you, Sunil. And last is Tirupati. Tirupati Janardhan. Pushpa, you can unmute yourself and introduce. Hello, sir. Hello, good morning, ma'am. Good morning, sir. I am Pushpa Yadav. I am completed my graduation in last year, political science honors. Thank you, Pushpa. So, shall we talk in English or Hindi or a mix? Maybe mix, sir. Yeah, please keep it bilingual. Right. So, I was just wondering while this proposition came through, what should I be talking about? Because you're all undergraduate students, most of you. Some of you have completed graduation. And this is a mixed audience. All of you have a common aspiration. So, जो महत्वाकांक्षा है करियर की, व्यवसाय की, वो सबकी एक है. तो इस सबको ध्यान में रख के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं और शायद एक आगे की अपॉर्चुनिटीज़ यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में क्या है उनके बारे में वी कैन चार्ट आउट द राइट ट्रेजेक्टरी फॉर आवरसेल्व्स. नाउ I wanted to be a kind of interactive mode. So अगर किसी को कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, you can stop me. आखिर में तो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए will anyways open the house up. So you can ask me anything in between as well. तो अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है उसको समझने के लिए sort of wrap our head around it. अगर एक conceptual clarity हो कि एग्जाम एक्चुअली है क्या. So most of us when we are in school और कहीं पे कॉलेज में भी एक धारणा बन जाती है, there is a misperception कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. You have to be absolutely किताबी कीड़ा होना पड़ेगा यूपीएससी अगर आपको क्लियर करना है. This is a myth.
तो पहले कुछ मिथक क्लियर कर लेते हैं। दूसरी जो एक अवधारणा, जो गलत धारणा है, वो ये है कि अगर आपने बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं लिए तो आप सिविल सर्विसेज में अच्छा नहीं कर पाएंगे। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी कोचिंग में एडमिशन लेना है तो 95% ट्वेल्थ क्लास में, 80% ग्रेजुएशन में होने चाहिए। लेकिन ये बात अपने आप में ठीक है नहीं ना। ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई की आवश्यकता तो है, लेकिन एक और चीज है जिसकी आवश्यकता है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज कंसिस्टेंसी। And the third thing which is important in UPSC is the idea of being aware. So you should be aware of the things going around. So suppose you're living in a society, there's a pandemic going on. The pandemic is ravaging India, wreaking havoc through so-called second wave. अगर आप लोग एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप में से कोई, वो खूब पढ़ता लिखता है, ध्यान खूब अच्छा अध्ययन करता है, परंतु वो ये प्रश्न नहीं कर रहा है कि पैंडेमिक को हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी है, उससे जो लोगों को डेथ हो रही है उनका कंपनसेशन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर जिन लोगों की डेथ हो रही है और डेथ ना हो, पैंडेमिक को रोकने के लिए, डिजास्टर को रोकने के लिए किस अधिनियम का, किस कानून का प्रयोग किया जा रहा है और उस कानून के क्या प्रावधान है, या फिर ये अथॉरिटी किसको है कि वो वायरस को रोकने के लिए जो हम नियम बना रहे हैं उनको एनफोर्स करें, या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़। अगर आप उसके विषय में जिज्ञासु नहीं है तो यू आर नॉट द एस्पिरेंट। आप सिर्फ पढ़ रहे हो but you're not aware and inquisitive. There are two things then, to conclude this aspect. UPSC aspirant needs to think in herself. One is inquisition, the sense of curiosity and awareness of her surroundings. And second is, of course, knowledge, the material. And now knowledge is of two kinds. One, that you read everything and you realize that the more you swim across the ocean, the wider and deeper it gets and there is no end to it. तो नॉलेज के तो कोई सीमा है ही नहीं, ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं। ज्ञान भी कई प्रकार का होता है। बौद्धिक ज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है जो बुद्धि से प्राप्त नहीं होता, वो अनुभव से प्राप्त होता है, लाइक एनलाइटनमेंट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हमें कैसा ज्ञान चाहिए? वी नीड स्मार्ट नॉलेज। So we'll come to that when we discuss sources. तो इस पूरे lecture को, if you can call it a lecture or a talk, I have divided into 3 parts. पहले part में we will discuss the strategy. Second part में we will discuss the sources. And in third part, we will discuss some, the word that was used, counseling, some doubts about the career choices, like whether you should go into academics or into civil services, or whether you should take coaching or self-study. So is the roadmap clear to everyone? Yes, sir. Right. Yes, sir. बीच में बोलते रहना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि चीजें पता नहीं क्लियर हो भी रही हैं कि नहीं। तो स्ट्रेटजी पे आते हैं। पहले आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग में से ज्यादातर लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो पहले आते हैं स्ट्रेटजी पे। नाउ स्ट्रेटजी टू बिगिन विद हैज 2 पार्ट्स। हर चीज के 2 हिस्से, 2 भागों में हम आज उसको डिवाइड करते चलेंगे। स्ट्रेटजी हैज अगेन 2 पार्ट्स। One part is learning, reading, studying, whatever you call it. एक तो ये है। Second part is expression. तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, जो पढ़ा है उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही अनिवार्य है। अध्ययन कर लिया, अध्ययन तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जब उसको अभिव्यक्त करने का अवसर आया
तो अभिव्यक्ति ही ना कर सके, कुछ भूल गए, कुछ घबरा गए, कुछ थोड़ा घबराने से और थोड़े भूल जाने से हाथ कांपने लगे, हैंड राइटिंग साफ नहीं रही। कई लोगों ने तो ये भी किया आंसर लिखते हुए, वहाँ बुकलेट मिलती है मेंस में आंसर लिखने के लिए, तो 11वें क्वेश्चन को 12वें क्वेश्चन के स्थान पे लिख दिया। अब ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि 12वें को 11वें के स्थान पे लिख दें, तो दोनों गलत हो जाएंगे। दैट कम्स बिकॉज हमने अभिव्यक्ति उतनी नहीं की, कि अध्ययन तो किया होता है, पता तो होता है कि आंसर क्या है, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की इसलिए पता, उस पर हम आएंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी टू बिगिन विद, अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करें यूपीएससी के लिए, तो देयर आर 4 प्रिंसिपल्स व्हिच वी शुड कीप इन माइंड टू बिगिन विद। पहला प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसको अगर आप 1 या 2 साल कंसिस्टेंटली उसके स्टडी मटेरियल को पढ़ लें और उसमें निरंतरता बनाए रखें, तो वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इन सो कॉल्ड इंटेलिजेंस क्वेश्चन और व्हाटएवर आईक्यू लेवल और व्हाटएवर दे कॉल इट। एक एवरेज व्यक्ति जो 60 से 70% 12वीं क्लास में ला रहा है, उससे भी नीचे ला रहा है, कोई भी एक एवरेज व्यक्ति से मतलब जो समझ जिसमें है, वो अगर 1-2 साल निरंतरता से पढ़ ले तो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो जाता है। अब इसमें ये है कि आप 1 सप्ताह जैसे पढ़ते हैं तो ऐसा कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यार इस बार तो मैं ही टॉप करने वाला हूँ। 2 सप्ताह पढ़ते हैं, आपको लगता है कि अरे वाह, बस सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि चीज़ें इतनी कठिन नहीं है। सिलेबस वास्ट है ज़रूर, लेकिन अगर आप उसको स्मार्टली पढ़ेंगे तो इंटरलिंकेजेस और कनेक्शंस एस्टेब्लिश करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस में डुप्लीकेसी बहुत है, एक टॉपिक कई जगह दिया हुआ है, तो आप उसको स्मार्टली सिंथेसाइज कर सकते हो, कंसाइज कर सकते हो। तो आपको लगेगा कि यार टॉप करने वाला हूँ। 2 दिन पढ़ाई छूट जाए तो अपने आप ही 2 सप्ताह पीछे चले जाते हो। अब कई लोग ऐसे होते हैं, वीकेंड में पढ़ लेता हूँ, आज पार्टी है, आज छोड़ देता हूँ, किसी फ्रेंड का बर्थडे है, कहीं पे जाना है, कोई फंक्शन है, तो फिर कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको 4 घंटे पढ़ना है, मीन्स पढ़ना है, कम व्हाट में, तो पहली चीज, पहला प्रिंसिपल हमेशा ये ध्यान रखो। दूसरा प्रिंसिपल है रिवीजन। आपको पता है कि सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज पढ़ाई नहीं होती। Studying is not as frustrating as revising something that you already know. आपको पता है कि आर्टिकल 370 कश्मीर के मामलों का है, उसके बारे में आपने 10 बार अध्ययन कर लिया है, सब कुछ पता है, लेकिन जब फिर दोबारा उसे पढ़ना पड़ेगा तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होगा। मान लीजिए आपको कोई ऐसी चीज है जिसको अब बार बार कर रहे हैं, दैट विल बी रियली एग्जैस्परेटिंग। यूपीएससी जो खेल है वो पढ़ने का नहीं, पढ़ाई से ज्यादा रिवाइज करने का खेल है, क्योंकि रिवीजन से बड़ी फ्रस्ट्रेशंस होती है। लाइक देयर इज अ बुक कॉल्ड एम लक्ष्मीकांत की बुक है इंडियन पॉलिटी। उस बुक को मोस्ट ऑफ अस रीड एंड वी नो थिंग्स। हमें पता है कि आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन जब दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा उसमें। लेकिन अगर हम फ्रस्ट्रेशन ना लेके, आई विल कम टू द थर्ड प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करें, तो हमें पता चलेगा कि जितने बार पढ़ो उतने बार कुछ नया मिल रहा है जो पहले छूट गया था। आप कितना ही आराम से पढ़ लो, छूट जाता है। तो द मोर यू रिवाइज, द स्ट्रोंगर योर मसल मेमोरी गेट्स एंड द इजीली यू विल बी एबल टू आंसर इन द एग्जामिनेशन। दूसरा प्रिंसिपल है रिवीजन। तीसरा है इक्वानिमिटी। मोस्ट ऑफ अस फेल टू रिमेन स्टेबल एंड कंपोज्ड जब कोई बुरी चीज होती है। आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से कोई शोर मचा रहा है, नीचे शोर मचा रहा है, आप अपने कमरे में ऊपर हो, इंस्टेंटली यू विल रिएक्ट, यू विल गो डाउन, डांटोगे, शोर मचा रहा है, वो भी रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि वो भी मनुष्य है। उसको डांटोगे तो उसको अच्छा नहीं रहेगा।
वो भी प्रतिक्रिया देगा, प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। एक बार ये स्पाइरल सर्कल स्टार्ट हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 2 घंटे निकल गए। ऐसे ही आर्गुमेंट करते करते, एक दूसरे के दोष व्याख्यायित करते करते समय चला गया। तो ये तो बड़ी समस्या हुई। यू शुड प्रैक्टिस इक्वानिमिटी। कोई शोर मचा रहा है तो स्थित प्रज्ञ इतने तो रहो कि शोर मच रहा है, मैं जागरूक हूं, आई एम अवेयर कि शोर हो रहा है, लेकिन क्षण भर में, 2 क्षण में चला जाएगा। या फिर अगर शोर मचाने वाले को डांटना भी है तो इस बात के प्रति अत्यंत जागरूक रहो कि मुझे इससे इंगेज नहीं करना है, मुझे सिर्फ शोर, मेरा उद्देश्य शोर शांत करना है, उससे कोई लड़ाई या आर्ग्यूमेंट या कुछ मोड़ देना नहीं। इसी तरीके से कभी अत्यंत हर्ष हो गया, खुशी हुई, कुछ नाचने गाने लगोगे, भूल जाओगे, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो जो गीता का एक श्लोक है, सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो तथैव, वो देख लेना। स्थित प्रज्ञता आप में रहनी चाहिए। इक्वानिमिटी क्या है, यू विल नो। तो वो हमेशा बहुत जरूरी है। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है। जैसे आपको पता है कि कल एग्जाम है, आज रिवाइज करना है, कुछ भी नहीं हुआ, आपको लगता है कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पूरे साल जो पढ़ाई करता है उसका सब कुछ तैयार रहता है। तो लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ है, एक दिन है और 200 पेज पढ़ने, 500 पेज पढ़ने, तो मन लगता है फ्रस्ट्रेशंस पैदा करने। ऐसा लगता है कि कहीं से भाग चलो। फ्रस्ट्रेशंस जब भी होती हैं लाइफ में, चाहे आपको पढ़ाई की वजह से हो, चाहे आपसे संबंधों की वजह से हो, और it could be due to your academic career or your studies or relations or anything. Frustrations beget escapism. जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप उस स्थिति से भागना, पलायन करना चाहते हो, you want to run away. तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाई कर रहा था 2017 में, I didn't clear my exam, तो उस समय IPL वगैरह तो चलता ही रहता है, वर्ल्ड कप नहीं, कुछ टूर्नामेंट था, तो चैंपियंस ट्रॉफी शायद, तो मैं पढ़ता रहता था। मुझे लगता था कि इतने सारे पेजेस नहीं हो पाएंगे, तो मैं सीधा, उस समय मैं हॉस्टल में था, डाउनस्टेयर्स भागता था, टीवी रूम में चला जाता था या अपने दोस्त के पास चला जाता था और बोलता था कि चल क्रिकेट मैच ऑन कर देखते हैं क्या चल रहा है। तो क्रिकेट, तो अगर आप स्थित प्रज्ञ रहोगे तो फ्रस्ट्रेशंस आने से पहले ही जागरूक होगी, फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं और मुझे इन फ्रस्ट्रेशंस को मल्टीप्लाई नहीं होने देना है। जितना हो पाएगा, 400 पेज हैं, कोई नहीं, 200 हो पाएंगे, 150 हो पाएंगे, वो आराम से तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ करने हैं। तो ये तो हो गए 3 प्रिंसिपल्स। चौथा प्रिंसिपल, सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं? यस सर। क्या किसी तरीके की बोरियत हो रही है? No, sir. Right. So the fourth principle is self-belief, आत्मविश्वास। हम में से बहुत सारे लोग चलती फिरती इनसिक्योरिटीज हैं, हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी आपको कोई बोल दे कॉलेज में कि यार आज अच्छे नहीं दिख रहे हो, बाल खराब हैं या कुछ भी, तो उसी पे कॉन्शियस हो जाते हो, उसी पे चिंताएं मन में चलने लगती हैं, मन में अलग अलग तरीके के विचार आने लगते हैं, यानी आपकी जो स्थित प्रज्ञता है, जो इक्वानिमिटी है, वो भंग हो गई और आप लगते हो विचार करने की, क्या करूं, कैसे करूं, why do I not look good, people do not find me attractive, appealing, and that generates its own level, kind of frustrations. होता क्या है कि आप जो है, जो अच्छा कर रहे होते हो, जितने अच्छे पहले दिख रहे होते हो, उससे भी नीचे चले जाते हो, खराब हो जाते हो। अल्टीमेटली ये किस चीज का नतीजा? इस चीज का नतीजा कि आपको
स्वयं पर विश्वास ही नहीं है। कोई आपको बोल दे कि मतलब आपने अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे रखा है, somebody else is controlling you, society is controlling you, social expectations पे, social norms पे या लोगों की expectations पे इतना खरा उतरने के चक्कर में स्वयं को भूल जाते हैं। स्वयं का ये क्या आपका अस्तित्व इतना कमजोर हो गया है कि किसी के एक क्वेश्चन, एक टिप्पणी, एक कमेंट से आप हिल जाते हो? यू शुडंट हैव दिस, क्योंकि यूपीएससी में तो होता क्या है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी है। अब हुआ दरअसल ये है पिछले 15-20 सालों में कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की कोचिंग को लोगों ने बिजनेस बना लिया है। भाई कम से कम करोड़ों करोड़ों रुपए के टर्नओवर है मंथली, बड़े बड़े एम्पायर खड़े हैं, बायजूस है, विजन है, आई शुडंट बी नेमिंग देम, लेकिन ऐसे एम्पायर्स लाइक इतने बड़े बड़े वो खड़े हैं कि वो लोग आईपीएल और क्रिकेट के टूर्नामेंट्स को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। मतलब नॉलेज को, स्टडीज को, प्रिपरेशन को लोगों ने कमर्शियलाइज इतना कर दिया है कि हर कोई अपना अपना कह रहा है। मेरे 600 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, मेरा मटेरियल पढ़ो। दूसरा कहेगा मेरे भी 600 हुए थे, मेरा पढ़ो। तीसरा भी यही कहेगा। आपने ए इंस्टीट्यूशन का मटेरियल चुन लिया, उसको पढ़ रहे हो। कोई आया कहता है कि बी मैं पढ़ रहा हूँ, बी वाला मटेरियल, बी वाले से पिछले साल ज्यादा क्वेश्चन आए थे, आपने ए पूरा पढ़ लिया, अब आप बी में लग गए, पता चला बी में भी वही बात है। बात सब जगह वही है क्योंकि सिलेबस तो वही है, डेटा वही है, इंफॉर्मेशन वही है, सब कुछ वही है, लेकिन क्योंकि लोगों को पैसा कमाना है, तो पैसा अगर कमाना है तो भाई जब तक आपको इनसिक्योर नहीं बनाया जाएगा, जब तक आपको डराया नहीं जाएगा, जब तक आपको ये विश्वास नहीं दिलाया जाएगा कि उनकी कोचिंग के बगैर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तब तक उनका पैसा तो कमेगा नहीं, क्योंकि आप जाओगे। तो इसलिए वो प्रोपेगेंडा पूरा चलता है। अपने आप को इतना दृढ़ और इतना आत्मविश्वासी बना लो, ये समझ लो कि जो स्ट्रेटजी मैंने चुनी है, चाहे उसमें कितने ही दोष क्यों ना हो, howsoever faulty it may be, the strategy that I have chosen for myself will work for myself and I don't care about anything else. तो ये बात सच है कि स्ट्रेटजी चाहे कितनी भी फ्लॉड क्यों ना हो, अगर वो सिलेबस कवर कर रही है, अगर वो ठीक ढंग से आपको दिशा ठीक दे रही है, तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन उसके लिए अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। अब ये तो रहा ज्ञान। अब हम बात करते हैं कि रियल प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बोलते रहो। राइट, सो इज देयर एनी क्वेश्चन सो फार? कोई डाउट, कोई शंका, किसी तरीके की कोई टिप्पणी हमने जो भी डिस्कस किया? Good morning, sir. Sir, this is R.V. Agrawal. I have a question, may I? Of course. Sir, as you stated about frustration part, we all suffer through it. So, can you suggest how we should overcome it? Practice Because it equanimity. happens very often. Right. Practice equanimity. How do you cultivate equanimity? There are multiple ways. One that this generation has started liking, but इससे पहले 5-6 साल बड़ी generation was loathing to it, disrespectful to it, is meditation. It really helps. Second is cultivate a hobby and practice your hobby with absolute focus and concentration. That also gives you quite calmness and equanimity. There could be other ways. Some people run. They run for like half an hour, they run 4 kilometers and then they feel so calm. There are different ways and different things work for different people. Lekin sense of equanimity या Right, mental sir. calmness. Thank you so much. All right. Anything else? Right. So अब हम डिस्कस करते हैं कि शुरुआत कैसे करें, करना क्या है। भाई सबसे पहला काम ये करो कि यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करो। यूपीएससी में 4 पेपर्स लगे हुए हैं मेंस में। एक में एथिक्स है जो चौथा पेपर है, तीसरे पेपर में इकोनॉमी है, थोड़ा सा पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है,
दूसरे पेपर में पॉलिटिकल साइंस का इंडियन पॉलिटी वाला हिस्सा है और IR वाला हिस्सा है। पहले पेपर में इतिहास है, भूगोल है और थोड़ा सा सोशियोलॉजी का हिस्सा है, सोशल साइंसेस। सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड करो और उसे बार बार पढ़ो, देखो कि उसमें क्या है। तो अब प्रिंसिपल्स डिस्कस करने के बाद हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि काम कैसे करें। सिलेबस देखो, टॉपिक्स देखो, उसमें लिखा है कि सिलेबस इज इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मतलब भी समझो, ये तो रास्ते में लगे हुए साइन बोर्ड की तरह रास्ता बता रहा है, इधर चले जाओ, ये नहीं कि पहुंचा दूंगा, पूरा वन टॉपिक नहीं दिया। मतलब क्वेश्चंस वहीं से आएंगे लेकिन उस पर कहीं से भी आ सकते हैं। आज सिलेबस देख लिया, दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करो, क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करो प्रीवियस ईयर्स, और ये देखो कि सिलेबस के जो पॉइंटर्स हैं जो आपने अब याद कर लिए हैं या लिख के कहीं रख लिए हैं, वो क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। और मान लो एक टॉपिक दे रखा है कॉल्ड लेट्स से कास्ट या फिर लेट्स से ग्लोबलाइजेशन, तो भाई ग्लोबलाइजेशन से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको देखो, उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो आपको एक दिशा मिल गई कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसमें जितना ज़्यादा सीरियस रहोगे, सिंसियर रहोगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ से आपका स्मार्ट वर्क शुरू हो गया। तीसरी चीज, 4 रजिस्टर्स मेंटेन करो। मेंटेन 4 रजिस्टर्स फॉर ईच GS पेपर। अब क्या होगा उन 4 रजिस्टर्स में? जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो इतिहास, अब इतिहास में आपने शुरू किया 1857 का रिवोल्ट। अभी क्या हुआ कि आपने उसके नोट्स वहाँ बना लिए, और बिकॉज वी ऑल आर विजुअली चैलेंज्ड, आई वुड सजेस्ट you can maintain an MS Word document or Google Doc or any such thing। तो और मज़ेदार चीज़ है और आसान हो जाता है। अब वो रजिस्टर बना लिया, now you have written 1857 revolt and suddenly वो उसके नोट्स बने हुए, suddenly there is a news कि some document has been found, और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये प्रूव हुआ that it was the first मूवमेंट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो सावरकर की थ्योरी थी वो, उसको सिद्ध करने के लिए कोई नया डॉक्यूमेंट मिला है। आप क्या करोगे? उस पर जो ओपिनियन ऐड आएगा, मतलब ओपिनियन आएगा न्यूज़पेपर पे एडिटोरियल में, उसको जब आप पढ़ रहे हो तो वहीं पे जो चीज़ अखबार में ऐसी कही गई है जिसके बारे में आपके नोट्स में ऑलरेडी है या आपने ऑलरेडी किताब में पढ़ लिया है, क्योंकि इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और कई चीज़ें तो ऑथर देगा ही ऐसी जिसमें पहले से जो हम जानते हैं, पता है, उसको छोड़ दो। जो नया हो उसको वहीं ऐड कर लो। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आपका जो स्टैटिक और करंट पार्ट है वो सिंथेसाइज हो रहा है। सिलेबस के 2 हिस्से होते हैं, स्टैटिक जो हम किताबों में पढ़ते हैं और करंट जो कि हम 1-2 साल 2-3 साल का करंट अफेयर पढ़ के UPSC के लिए जाते हैं। तो अलग अलग नोट्स नहीं बनाने हैं, कंसोलिडेटेड सिंथेसाइज नोट्स बनाने हैं। तो करंट और स्टैटिक को यहीं आपने, अब जैसे एक पेपर 2 में एक टॉपिक लगा है जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी, इट्स कंपोजिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम सब ने न्यायालय के, न्यायपालिका के बारे में पढ़ा है। एंड व्हाट यू डू हियर, भाई जुडिशरी टॉपिक है, उसको लिख रखा है, स्ट्रक्चर क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर नीचे कोर्ट्स हैं, लोकल अदालत हैं। एक कुछ ऐसा हुआ कि कोई जुडिशल इम्प्रोप्रायरिटी हुई, कुछ ऐसा हुआ जो कि न्यायालय की स्वतंत्रता पे शक पैदा करता है। आर्टिकल आया, उस आर्टिकल को पढ़ो, जितना पुराना किताबों में पढ़ लिया है
उसको छोड़ दो जो आर्टिकल में रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेसी हो रही है। जो नया है आर्गुमेंट है, कुछ जुडिशियल एक्टिविज्म पे है, जुडिशियल ओवररीच पे है, या फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है। किसी जज को आपने फिर संसद में भेज दिया और वो इंडिपेंडेंस पे आपको वो आ रहा है, तो तुरंत वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ उसको नोट्स को लिखो, ताकि वो नोट्स कंसोलिडेटेड हो जाए, वहीं सिंथेसाइज हो जाए, अलग से आपको कोई और रजिस्टर खोलने की जरूरत न पड़े। और जब क्वेश्चन आए, जब आप क्वेश्चन आंसर करें यूपीएससी का, तो उन एग्जाम्पल्स को, उन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को जरूर कोट करें, तो बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ऐसे ही 4 पेपर्स का सिलेबस देख के उसके हिसाब से टॉपिक वाइज आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, और टॉपिक वाइज ही नोट्स वहां ऐड करते जाने हैं, कंसोलिडेटेड करते जाने हैं, सिंथेसाइज करते जाने हैं। अब इससे क्या होगा, कहाँ क्या कैसे हो रहा है, आसपास की जो, जिसको हमने शुरू में जो रखी थी क्यूरियोसिटी, वो बड़ी निखर के आएगी। आपको पता चलेगा कि 188 सेक्शन ऑफ आईपीसी, अरे उसके मतलब वो लगता है व्हेन द ऑर्डर ऑफ अ सिविल सर्वेंट ड्यूली प्रोमलगेटेड इज वायलेटेड, तो उसके ऊपर सेक्शन 188 लगाते हैं। आपको पता चलेगा ये तो बहुत पुराना वो है, लेकिन पैंडेमिक को रोकने के लिए लोग बाहर ना निकले, मास्क पहने, और नहीं मान रहे हैं तो उनको चार्ज करने के लिए वो सेक्शन लगाया जाता है। अभी जैसे एक पति पत्नी वीडियो में आए थे, बड़ा वायरल हुआ था, उसमें वो क्या कर रहे थे, वो जो उनकी वाइफ थी बहुत जोर जोर से पुलिस वालों को चला रही थी और कह रही थी कि मास्क नहीं पहने, और उनके ऊपर 188 लगाया गया था। तो अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से कंसोलिडेट कर रहे हो, सिंथेसाइज कर रहे हो, नॉलेज बेस आपका बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है, तो आपको अपने आप पता चलने लगेगा कि किस कानून के तहत कहाँ क्या कैसे हो रहा है। तो आई होप दिस स्ट्रेटजी इज क्लियर। यहाँ पे अगेन आई वांट टू मेंशन, रीटरेट कि 2 हिस्से हैं भाई। एक तो है रीडिंग, तो रीडिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे मेंटेन रखने हैं, सिंथेसाइज कैसे करना है, और कैसे तैयारी करनी है, वो तो मैंने बता दिया। दूसरा हिस्सा है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। सिर्फ पढ़ के ना बैठ जाओ, पढ़ लिया अच्छी बात है, अब ये तो देखो कि जो पढ़ा है उसको अभिव्यक्त कैसे कर पा रहे हो, वो कितना याद है, कितनी उसमें जान है आपके आंसर्स में। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगेन, पंचायती राज पे पढ़ा है, अभी भी चुनाव हुए हैं कई जगह पे, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, पंचायती राज व्यवस्था पे क्वेश्चन आया हुआ है मान लो पिछले साल कि भाई क्या दोष है पंचायती राज सिस्टम में, तो जो नया पढ़ रखा है तो बता दोगे कई दोष हैं। जो जिसने कम पढ़ा है या जिसने ध्यान नहीं दिया वो आम बातें बता पाएगा, बता देगा कि पति प्रधान व्यवस्था है, प्रधान पति व्यवस्था है, ये दिक्कत है उसमें, मेल शोविनिज्म, मेल डोमिनेंस है, ये दिक्कत है, और उसमें ये दिक्कत है कि रिसोर्सेज नहीं। लेकिन जो आदमी डेफ्थ में पढ़ा होगा उसके पॉइंट अलग होंगे, और जिसने बार बार अभिव्यक्त किया होगा, लिखा होगा, वो कुछ और लाएगा। वो 15th फाइनेंस कमीशन की स्टडी लाएगा, रिपोर्ट लाएगा, उसके हिसाब से क्या दिक्कतें हैं वो बताएगा, पैसे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं ये बताएगा। वो ये भी बताएगा कि कौन सी स्टडीज हुई हैं पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथन करने, वो ये भी बताएगा कि कई राज्यों में तो चुनाव ही नहीं हो रहे पंचायतों के, तमिलनाडु में अभी बहुत लंबे समय बाद हुई। तो जो अवेयर होगा उसके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। तो इसीलिए जो पढ़ रहे हो, एक तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर्स कहीं से भी मिल जाएंगे, उसको अभिव्यक्त करते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। मतलब राइटर के अगर कोशिश करो तो राइटर से लिखवा लो, कोई अगर अपना संबंधी है, नहीं तो स्वयं भी नोट पैड या एमएस वर्ड में लिख सकते हो। अब यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो सारी तैयारी है वो मेंस ओरिएंटेड है, क्योंकि मेंस ही तो मेन है। हालांकि जब तक प्री क्लियर नहीं होगा तब तक मेंस कैसे लिखोगे, उस पर हम आएंगे। पर अगर मेंस की तैयारी अच्छे से कर लोगे तो प्री की तैयारी अपने आप हो जाएगी। तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड रखो। प्री की तैयारी
मेंस प्री आने से 1-2 महीने पहले ही हम प्री ओरिएंटेड पढ़ लेंगे, सोर्स सेम है, इसलिए उस बारे में चिंता ना करो। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर तो मेंस पे पहुंच के प्री तो क्लियर कराया नहीं, तो ऐसी दिक्कत नहीं। Now, अब जिस साल एग्जाम देना है, मान लो एग्जाम देना है 2023 में, 2023 के जून में प्री है, सितंबर में मेंस है, जनवरी फरवरी में इंटरव्यू है और 2024 के अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। तो पढ़ाई कब शुरू करें? पढ़ाई उस हिसाब से शुरू करो। मान लो 2023 का अटेम्प्ट अगर देना है तो भाई 2022 के मई जून या मार्च अप्रैल से शुरू करो। कुल मिला के दिसंबर तक पूरी मेंस की तैयारी हो जानी चाहिए। ये पूरे जो सिलेबस हैं, चारों रजिस्टर, वो पूरे तैयार हो जाए। अब ये सारी तैयारी हो गई, आप तैयार हो गए पूरी तरीके से, रजिस्टर्स नोट्स बन गए हैं। अब सिर्फ करते ये रहना है कि करंट अफेयर्स पढ़ के हमें चीज़ें ऐड ऑन करते रहना है, सिंथेसाइज करते रहना है, कंसोलिडेटेड नोट्स में अपने ऐड करते रहना है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। 2020 में पैंडेमिक आया, कुछ भी नया नहीं हुआ बहुत लंबे समय तक, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ तो हमने ऐड कर लिया। तो ये तो रही आपकी स्ट्रेटेजी। अब 2-3 चीज़ें और बचती हैं, आई विल क्विकली कवर। वन इज ऑप्शनल। भाई ऑप्शनल तो हर किसी का अलग अलग होता है, तो हर किसी को तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग अलग बनानी पड़ेगी। कुछ कॉमन पैरामीटर्स हो सकते हैं। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 1-2 घंटे ऑप्शनल को भी दें, और ऑप्शनल भी 70% ऑप्शनल आपका जब मेंस का सिलेबस कंप्लीट हुआ है तब कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 70% कौन सा वाला कंप्लीट करना है ये कैसे डिसाइड करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखकर ये पता चलेगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं है। अब ऐसे कैसे लिखें वो भी एक बात है, तो उसको मैं अभी स्किप किए देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि समय बहुत जा रहा है और हमारे पास लिमिटेड समय है, उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। कुछ लोगों ने पूछा था कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो भाई इंटरव्यू के लिए सबसे जरूरी है ये समझ लेना कि इंटरव्यू आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। व्यक्तित्व तो बहुत लंबे समय पे निर्मित होता है। द पर्सनैलिटी इज डेवलप्ड ओवर टाइम, सो यू कैन नॉट चेंज इट overnight. Now, what you need to keep in mind that you have to be your authentic self. Don't bluff. Do not be someone that you're not. Try to be yourself. DAF एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है जब आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाता है, उसको केयरफुली भरो क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरवाई जाती है, आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे पढ़ाई हुई, कहाँ से हुई है, क्या पढ़ा है, क्या काम किया है, कहीं किया है, तो क्या आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या चीज़ पसंद है, नापसंद है, कहीं पे लीडरशिप वगैरह की है क्या, सारी चीज़ें भरवाई जाती हैं। उसके एक एक शब्द से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। और ये बात है कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट तो रहना है लेकिन एरोगेंट नहीं रहना है। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में बड़ी थिन लाइन है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। अब जैसे एक लाइव एग्जाम्पल, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि भाई व्हाट डू यू डू इन योर टीचिंग दैट द अदर टीचर्स आर नॉट डूइंग। द क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू डू दैट द अदर टीचर्स आर नॉट डूइंग? आई सेड, sir, I practice experiential methodology in the class. I'll tell them stories and try to bring something new to the table. And like, wow, really? You do that? That's how cool is that? Like they were like, you know, and I was aware क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि वो चाह रहे थे कि मैं दूसरे टीचर्स को क्रिटिसाइज करते हुए अपने नंबर बनाऊं। सो एरोगेंस कितनी है मेरे अंदर, ईगो कितना है, वो they were trying to test. So you should be aware. Now I will quickly come to the sources. Is everybody with me? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? Yes. No problems? No, sir. Very nice. Sources बड़े important हैं।
लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए कि सोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मल्टीपल, एक मंत्र याद कर लो, मल्टीपल रिविजन्स ऑफ वन सोर्स is better than one revision of multiple sources. So like if you have 10 books and you go to read them one time, it is better to read one book 10 times than 10 books one time. ये बात हमेशा याद रखना। तो सोर्सेज जितने लिमिट हो सकें उतने लिमिट करो, सोर्सेज को सीमित करो, सोर्सेज फैलाओ मत। कई लोगों को लगता है ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। अब मेरा एक मित्र, फिलोसफी उसका ऑप्शनल था, उसने कहीं पे बर्ट्रैंड रसल का कोई आर्ग्यूमेंट देखा, अगले दिन हम देख रहे हैं कि बर्ट्रैंड रसल की किताब लिए बैठा है। फिर इमैनुअल कांट का कुछ देखा तो इमैनुअल कांट की किताब लिए बैठा है, जॉन लॉक को पढ़ रहा है। अरे भाई वो सब नहीं चाहिए। लिमिट 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 योर सोर्सेस। दूसरी बात ये याद रखो, सोर्सेस कुछ भी हो, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे सुभाष कश्यप हो, चाहे किसी कोर्स का मटेरियल हो, बाजीराम हो, विजन हो, कुछ भी हो, बात सब में एक ही है। कोई भी पढ़ लो, एक के प्रति लॉयल रहो। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये बात याद रखना। अब एक्सेसिबिलिटी की बात आई थी भाई, ये मुझे एड्रेस करना है। सबसे पहले हम एड्रेस करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू पढ़ना बहुत जरूरी है। हर रोज उसको कवर टू कवर पढ़ना बड़ा आवश्यक है। इंडियन एक्सप्रेस अगर हो सके तो। अब एक्सेसिबिलिटी की जहां तक बात है तो आप क्या करो, epaper.hindu.com है, यानी हिंदू ई पेपर को सब्सक्राइब कर लो। उसमें कुछ शुल्क लगता है, पैसे लगते हैं और सब्सक्रिप्शन हो जाता है। उसमें क्या है कि जो न्यूज़पेपर आता है वो एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द न्यूज़पेपर आता है। मतलब जो न्यूज़पेपर हम लोग पेपर पे पढ़ते हैं हम लोग, वही न्यूज़पेपर वहां पे आता है। और उसको आप खोलोगे तो वो काफ़ी एक्सेसिबल है और आराम से आप पूरा का पूरा अखबार 2-2.5 घंटे में, 2 घंटे में, शुरू में ज़्यादा समय लगेगा, पढ़ पाओगे। अखबार में क्या ज़रूरी है, अखबार में सिलेबस देखो फिर से। whenever in doubt read the syllabus, go back to the strategy। और जो ऐसा है जो सिलेबस, अब मान लो किसी मंत्री ने कुछ कह दिया और दूसरे मंत्री ने रिटोर्ट कर दिया, कांग्रेस ने बीजेपी को कुछ कह दिया, बीजेपी ने ट्वीट कर दिया, ट्वीट से फिर दूसरे ने ट्वीट कर दिया, रिएक्शन चेन काम का नहीं है। अब दूसरी न्यूज़ है कि भाई जो कोवैक्सीन है उसकी एफिकेसी अचानक से बहुत बढ़ गई, दूसरा डोज लेने के बाद 95%। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। या फिर एक न्यूज़ है कि जिन लोगों ने बीसीजी वैक्सीन ली थी, ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन ली थी, उन लोगों को कोरोना वायरस बड़ा कम असर कर रहा है। इंपॉर्टेंट है। अब एक न्यूज़ पढ़ गई, दिल्ली में 3000 केस, काम की नहीं है, रोज बदलेंगे। तो जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो पता चल जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल पेज है, अब अखबार का जो एडिटोरियल पेज है हिंदू में 6वां 7वां पेज जो है, उस पे ज्यादा समय बिताओ, वो काम का है। क्यों? क्योंकि उस पे ओपिनियन आर्टिकल्स आते हैं, लेड आर्टिकल्स आते हैं, वो बताते हैं। जैसे एक आज इंडो जापानीज फ्रेंडशिप पे एक आर्टिकल है या फिर एडिटोरियल है इस बात पे कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर और लोगों के बीच में कैसे संतुलन, मतलब पावर के और लोगों के राइट्स के बीच में कैसे संतुलन बिठाया जाए। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया था कि जो भी ऑक्सीजन की कमी या कोविड के बेड की कमी की बात करे उसे उसकी मतलब उस पर एनएसए लगा, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा। तो डेमोक्रेसी में ये बात तो बड़ी गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी तो है ही, लेकिन आप लोगों को दंडित इस बात के लिए कर रहे हो कि जेन्युइन डिमांड। तो किसी ने ट्वीट कर दिया कि भाई मेरी मम्मी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहाँ मिलेगा, प्लीज मुझे बताओ, मिल नहीं रहा है, तो उसको अंदर डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और कहा कि ऐसा अगर आगे से करोगे तो हम सीरियस एक्शन लेंगे।
तो आपको इस पूरे न्यूज़ पे एडिटोरियल मिलेगा आज, उसमें आप समझ जाओगे। अब क्वेश्चन ये आएगा, डू यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी द government has absolute powers to curtail people's freedom during a pandemic or during emergency or during a disaster? तो क्वेश्चन आएगा, इसका जवाब क्या दोगे? अगर सही से पढ़ा होगा तो बोलोगे प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ पावर। ऐसा नहीं कि भाई जहां सुई से काम चल जाएगा वहां तलवार का इस्तेमाल कर लो। प्रोपोर्शनेट, द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिस किसी के आंसर में ये होगा वो अच्छा जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये शब्द हो, भाषा या आर्ग्यूमेंट ऐसे होने चाहिए कि भाई लोगों के अधिकार भी तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सरकार की शक्तियां भी उतनी ही, राज्य की शक्तियां भी उतनी इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोग जिस्ट समझ गए होंगे कि करना क्या है। अब ये आर्टिकल जैसे आया है तो इसको एग्जीक्यूटिव वाले सेक्शन में जो रजिस्टर आपने बना रखा है पेपर 2 का, पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटी में, गवर्नमेंट में, उसमें डाल दो। जो चाहो तो जुडिशरी वाले में भी डाल सकते हो, डिपेंड करता है कि क्या लिखा है उसके अंदर। अब एक्सेसिबल मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं, किताबों के बारे में। किताबें कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? पेपर 1 के लिए, इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर बिपिन चंद्रा की इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है। आराम से एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध है, ई टेक्स्ट है इसका। एक इंडिक ट्रस्ट करके ट्रस्ट चलता है, उनकी आप मेंबरशिप ले सकते हो, वो आपको ये सारी किताबें यूपीएससी की आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोन की किताब ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी 6 से 12 की एनसीईआरटीज़ है। एनसीईआरटीज़ आसानी से उपलब्ध हैं, बुक शेयर पे उपलब्ध है, कहीं उपलब्ध नहीं है तो बुक शेयर से डाउनलोड कर सकते हो। अब ये तो हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी विजन के नोट्स या फिर नॉर्मल लॉ की बुक है, वो भी आराम से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सोशल साइंसेस के लिए न्यूज़पेपर, अगर ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो 11वीं 12वीं क्लास में से 12वीं क्लास की एक सोशियोलॉजी की किताब इंडियन सोसाइटी पढ़ लो, उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। पेपर 2 जिसका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, उसको तो कुछ खास ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नहीं है उनके लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटी। आईआर के लिए जिन लोगों को पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, शशि थरूर की बुक फैक्ट्स एंड बिगअप पढ़ सकते हैं, या फिर डज द एलिफेंट डांस डेविड मिलोन की बुक पढ़ सकते हैं। जिनको पहले से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रहा है या आईआर की थोड़ी सी समझ है, वो अपना क्या कर सकते हैं, वो सीधा न्यूज़पेपर पर फोकस करें, क्योंकि पेपर 1 में स्टैटिक पार्ट ज़्यादा है, पेपर 2 में और 3 में बड़ा करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की किताब या फिर संजीव वर्मा की किताब इंडियन इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर उनको पढ़ना है वाजीराम के नोट्स भी वो ले सकते हैं। तो ये तो रहा मटेरियल। अब ज़्यादातर चीज़ें जो है वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड होती हैं, इसलिए आप जैसे न्यूज़पेपर रोज़ तो पढ़ ही रहे हैं। दूसरी चीज़ करें कि मंथली मैगजीन्स आती हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की, जैसे विजन की है, जैसे आईएएस बाबा की है, कई लोगों की है। तो उनमें से किसी एक को चुन लो। याद रखना सोर्सेज मल्टीपल नहीं होने चाहिए, एक सोर्स हो, भले ही उसमें दिक्कत भी हो, कोई बात नहीं, बार बार उसको पढ़ने से हमारा काम बन जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक मंथली मैगजीन भी पढ़ो। उससे क्या होगा कि जो हिंदू या दूसरे अखबार में पढ़ते आए हो वो फिर से रिवाइज हो गया और अच्छी तैयारी हमारी हो गई। तो अब एथिक्स का एक पेपर बचता है। एथिक्स में लेक्सिकॉन की बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगेन एथिक्स का जो पेपर है उसमें आप कितने ऑथेंटिक साउंड कर रहे हो, कितने अपने एक्सपीरियंस से लिख रहे हो और वहाँ पे जार्गन नहीं डाल रहे हो, कितना सिंप्लीफाइड रख रहे हो चीज़ों को, वो बड़ा काम होता है। तो पढ़ो, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा अभिव्यक्त करो, बार बार अपने आप को जांचो। अब जांचे कैसे? एक आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा, तो भाई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां एस्पिरेंट्स जो है वो अपने अपने आंसर्स लिखते हैं। सबके आंसर्स देखो और अपना आंसर देखो, कंपेयर करो किसने क्या ऐड किया आप नहीं कर पाए,
कुछ चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, कुछ उनकी अच्छी होंगी। अगली बार जो लिखो तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीख लो। आंसर कैसे, स्ट्रक्चर IBC, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब कई चीज़ें जो है वो रह गई हैं। मुझे लगता है कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। मल्टीपल रिविजन्स बार बार करते रहो, बार बार लिखते रहो। और भाई जैसे दिसंबर तक आप मेंस रेडी हो गए, दिसंबर के बाद से क्या करो, अब करें कैसे वो ज़रूरी है ना। दिसंबर, मैंने पहले आपको बताया था कि दिसंबर तक मेंस रेडी आप हो गए, यानी मेंस लिखने लायक हो चुके हो, जिस साल अटेम्प्ट देना है उससे पहले वाले साल में। अब क्या करो कि मेंस के दो तीन क्वेश्चंस किसी टेस्ट सीरीज से कहीं पे मिल जाएंगे, मॉडल क्वेश्चंस, रोज सोल्व करो और अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। फरवरी तक एक रिवीजन हो जाए, मान लो जून में एग्जाम है, और अब जो है मेंस के दो तीन क्वेश्चंस फिर से लिखो और एक प्री की टेस्ट सीरीज ले लो। उस टेस्ट सीरीज को सोल्व करना शुरू करो, पढ़ो और सोल्व करो, पढ़ो और सोल्व करो, देखो कैसा कर रहे हो। उसके बाद जो है जब 2 महीने रह जाएं तो एक्सटेंसिवली टेस्ट सीरीज सोल्व करो, जितना कर सकते हो उतना। याद रखो कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं लेना है, सिलेक्शन जनरल में लेना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। अब एक प्रॉब्लम होती है CSAT, जब हम प्री की बात करते हैं तो CSAT हम लोगों के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए बहुत कठिन हो चुका है। भाई मैं तो ये कहूँगा कि CSAT, हालांकि यूट्यूब पे चीज़ें अवेलेबल हैं आजकल, आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर और स्मार्ट हो, टेलीग्राम पे चीज़ें हैं, मिल जाती हैं, लेकिन भाई बहुत प्रैक्टिस करो। एक कोचिंग लो, टेस्ट सीरीज लो, बात ठीक है, कोचिंग ले सकते हो CSAT की, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। CSAT क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये पूरे सपने, मेंस में बैठना है, इंटरव्यू में बैठना है, सिविल सर्वेंट बनना है, धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए CSAT को बहुत सीरियसली लो। जब तक CSAT में कम से कम 50 क्वेश्चंस 2 घंटे में सोल्व नहीं कर पा रहे हो, चैन से मत बैठो। CSAT में तो बहुत लोग लटकते हैं, बहुत लोग फेल होते हैं। So I think that's all I would say. The rest will unfold during the Q&A. So that's all from my side. You can open up the house for questions. Sir? हाँ जी. Sir, would you please recommend any good book for CSAT? For? CSAT. Rather than book, I would suggest for CSAT, watch lectures and videos. There is no one book, and if there is something that works, I'm not aware of it, because most of the times you will need to learn tricks and techniques that enable you to solve a particular question, say in 1 minute, 1.5 minutes. So watch the videos, assimilate and practice. The more you practice, so we all know what is there, like percentage, ratio, compound interest, time and distance, time and speed, and sometimes permutations and all that stuff. We all know that there is syllogism in reasoning, there is blood group relations, and then there is odd one out, there is puzzles. So this is all they ask in terms of reasoning and quant. We all know what is there. The material is also available. If you go by like percentage, जिसको सीखना है तो percentage ही सीखे, लेकिन what is more important is practice. Like you should be able to solve the question as soon as you see the question. You shouldn't need your writer, कि क्या पढ़ना है, अब ये ऐसे करो, वैसे multiply कर लो, ये कर लो, बहुत time लग जाता है. The entire exercise turns out to be a futile exercise. है ना? Okay. Thank you. Next questions. Any other questions? Sir, I'm Shimpi from Miranda House, and I would like to ask that can we choose Hindi as an optional subject? हिंदी साहित्य कर सकते हैं यार, लेकिन मुझे ना उसका ज़्यादा अनुभव है नहीं कि उसमें देखो, ऑप्शनल चूज करने से पहले 2-3 चीज़ें देखो। एक तो ये देखो कि
ऑप्शनल जो आप चूज कर रहे हो उसका सिलेबस कितना है। अगर बहुत वास्ट उसका सिलेबस है, उसका पाठ्यक्रम बड़ा है, तो उस स्थिति में आप थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि कुछ ऑप्शनल जैसे समाजशास्त्र है उसका सिलेबस बड़ा छोटा है, भूगोल कई लोग लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि भाई जो ऑप्शनल है क्या उसका कुछ हिस्सा जो जीएस का सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम है उससे ओवरलैप करता है। ओवरलैप करता है तो कई चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं, नहीं करता तो अब हिंदी साहित्य अगर आप लोगों तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, एक उसमें ये सीमा है। लेकिन ये देखो, क्योंकि जो कई लोग जैसे मलयालम लिटरेचर, कन्नड़ा लिटरेचर लेके टॉप करते हैं, नंदिनी ने टॉप किया था, तो ये ज़रूरी भी नहीं है। तो अपना पहले पाठ्यक्रम चेक करो और क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो करो। अगर आपको लगता है कि भाई जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा था वही सिलेबस इधर है और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो भाई गो फॉर इट। और फिर देखो तीसरी चीज़, मार्क्स कैसे मिलते हैं उस ऑप्शनल में। कई ऑप्शनल्स में तो मार्क्स ही नहीं आते, कहीं में आते हैं, तो वो भी एक कंसिडरेशन बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। एक और कंसिडरेशन यही बनता है कि जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है मैं उसी को लूँ तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर नए विषय में नए तरीके से समझने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो बच जाती है ना। तो इन बातों का ध्यान रखो ऑप्शनल चूज करते हुए। So I want to ask, like, for example, when we do the answer writing, so we have heard through a lot of people, like, you use different diagrams or to, like, for example, if we are doing some question of geography, so people make the maps to show. Yes. So, like, what we can do, I mean, in this situation, how we can, like, how we can, Well, in my enhance more. case, I noticed that this is a limitation. Like, people use diagrams, they use flowcharts, and they like make maps and everything. If you're confident enough and can rely on your scribe, that your scribe will be doing what you say, so you can go for it. But if it's taking too much of time, क्योंकि उसमें वो लोग इसलिए करते हैं कि समय बचता है, but if it's taking too much of time, then you may avoid it. You may simply choose to write. So in that case, to substitute that, write concise, clear points and express in a cogent way. So when you write, I would like to take this opportunity also to express what is a good answer like. A good answer has good content, all right, but more than content, it has good structure. Introduction has already told you what's going to follow. Introduction is in a way, is telling you what's going to unfold, or it's written in a way that it invokes keen interest in the mind of examiner, body, and then conclusion should again do something of the sort that captivates the interest. And thirdly, it should be cogent and coherent. The answer should be cogent, concise, and very very precisely mentioned, क्योंकि questions बहुत बड़े होते हैं लेकिन लिखने के लिए 150 या 250 शब्द ही होते हैं. So I'll say to substitute flowcharts and diagrams, there is no absolute substitute as such, and it is a limitation, I would acknowledge. But then you can use your words carefully and maybe create the impact. So that's all about creating an impact. But in case you want to use diagrams and flowcharts, it's a serious limitation. We have limited substitute to this. Also, one more question I want to ask. So for the science and technology, like which is there on the GS3, so how should we take that? Like how should we prepare for science and technology? Read Hindu's science page that comes on Sundays every day, like every Sunday, and also I think there's some science publication. Also, if you can read Spectrum Publications book, but then it's too vast. You'll have to be very selective. Like these days, questions are coming from artificial intelligence, Internet of Things, blockchain technology, and questions are coming from other such disciplines, the technologies and technical disciplines. But we don't see much of the questions from chemistry and other things. So, जो भी काम का नहीं है, उसको you'll have to leave. Environment पे you'll have to read, biotechnology पे you'll have to read, science and technology पे
the technology part you have to read, or space वगैरह पे. So be very selective. Do not read the unnecessary stuff, because most of what comes in the questions is solved through current affairs only. So you need to keep that in mind, that you're reading to make your base, but most of it will anyways be taken care of by the current affairs. Okay, thank you, sir. Right. Sir, I have a question. Hanji. Sir, if I take philosophy as an optional subject, then which all books I should read thoroughly so that I can appear nicely in my first attempt? Like, Philosophy optional? yes, sir. Because I am a student of philosophy from Hindu department, so I am taking to, like wanted to take a philosophy optional. So, what is your guidance about the subject, sir? I can guide you nothing about philosophy. Like, I don't know about the philosophy syllabus in UPSC, and so Okay. I'll not be the right person. And the least I would want to distract you from the path, so I cannot guide you on that. So maybe just there are so many people who've taken philosophy on YouTube and Google. It's Google the best strategy for philosophy optional toppers, so you'll get the required directions. Okay, sir. Thank you. Right. Any other questions? Yes, sir, I have a question. Yes. So, what is the best time to start our preparation? Not only preparation, but the consistent one that you are talking about. As of now, we are in first year and we still have 2 more years. So, what should we do? Yes. So I want everyone to listen to this carefully. Very nice question. Some people say कि वो जब 12वीं क्लास में थे तभी तैयारी शुरू कर दी थी. कुछ लोग को बोलते हैं 11वीं में कर देते. कुछ लोग बोलते हैं कि पैदा होते ही मॉम डैड चाहते थे कि यूपीएससी करो तो तैयारी शुरू हो गई थी. तो all this is just whatever. What I want to bring to your attention is that there is something called peaking prematurely. So suppose I want you to let me choose an example. Suppose I want you to work on a computer or play a computer game. Initially, you would lose, then you'll start winning, then you'll start doing really great, then you will reach to your maximum, and then after a while, you will start losing interest. You know that you will win, but you wouldn't want to put sincere efforts. You will divert, your attention will get diverted, distracted, and the digression will result into you losing, and then you will slide down. So what happens is, when you prepare for something, the syllabus is the same, material is the same, revisions have to be multiple. Do not think that if you start preparing from 5 years, or like if you prepare for 5 years and then give one attempt, if you prepare for 3 years and give one attempt, that doesn't work. Because most of the times we end up peaking prematurely, and when we reach the state where we have to write the exam, we feel we are too bored and too frustrated with the syllabus to write it down properly. So that excitement, that keenness, that sense of passion is gone. So right now, if you're in first year, the right thing to do is 2 things. 1, orientation. Get your orientation right. When you see some event happening, just think of yourself in the power position कि अगर मैं joint secretary हूँ तो what is my decision going to be, or if I'm the district magistrate, what is my decision in this case? How would I solve this problem? If you put yourself in this position, gradually what will happen, there is something called law of attraction. So you will start visualizing yourself as an officer. So what will happen, you will get your orientation shifted. That orientation will be the orientation of a civil servant. That will come in handy when you prepare and when you write your mains, answers, and interviews. So this is one. Second, start reading, but do not start reading in absolute full-fledged manner. Start reading gradually. Give yourself time, like your 3rd year.
make it a point in next 6 months you're going to complete geography. In next 6 months you will see that you complete history and economy, where you will in the second year read polity and all that. Meanwhile, you will start reading current affairs seriously, start reading the newspaper seriously. So and also gradually when you're in third year, so the right time to start sincere preparation is at least 1 year before the date of the examination that you wish to take. So suppose you're turning 21 at the date of appearing in the exam, right time for you to take the exam, or right after the graduation, so you can start preparing in the third year of your graduation, so that you can take your attempt right after your graduation and clear it. But if you're not turning 21, then it's wise to give yourself 1 year and prepare hard. Okay, does that suffice? Is there anything else that you want to clarify? No, sir. Thank you. Perfect. Sir, I have a question. Hmm. Yeah, sir, should we go through all the NCERT books for all the subjects, like not particularly for geography, but for other subjects as well, like for history or political science, from 6th to 12th? So you're asking whether we need to read all the NCERTs or selective NCERTs? Right, sir. Selective. Like in terms of geography, you can go for 6 to 12. The old geography 6 to 8 is really good. I have seen it. And if you read old geography 6 to 8, then read old. Don't read new. But if reading new, then read new. Do not ever multiply your sources. अगर इस geography में ये नहीं आया तो कहीं और मिल जाएगा. Don't worry. So one is this geography में 6 to 12. I would prefer you read old geography 6 to 8, and then 9 to 12 you can go for new geography, but that will suffice. And if at all you want to go ahead, then you can go for GC Leon for physical geography. That's a standard book. NCERT history, the new history is not that useful. 6 to 8 you can read the new history, but for 11th the ancient history old, and for 12th the modern history old, 1990 edition NCERT. Right, economy you don't need to read much, but if at all you want to read, you can read 11th class book, and then macroeconomics from 12th class. And yes, politics, the 9th class book on democracy is very important. 10th class book is important, and 11th, 12th political science is also important. Science and technology, science I don't think you need to read, but if at all you want to read, you can read biology, the chapters which consider, and chemistry, the chapters which has to do with environment. Yeah, so that's all about NCERTs. Okay, sir. Thank you so much. Right. Yes, sir. Sir, this is Avira. May I ask? Of course. Yes, sir. Sir, what is the qualification of scribe? और सर जो CSAT में क्वेश्चंस आते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पर्टिकुलर टाइम देना होता है. तो सर और कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं मैथ रीजनिंग में जिसके लिए हमें रफ पेज की जरूरत पड़ती है. तो बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, हम उस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं? नाइस क्वेश्चन. देखो भाई, पहले तो ये देखो कि सीसैट में जो है ना, एक तो कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो बहुत ज़्यादा टाइम खा के बहुत कम आउटपुट देता है. तो उसकी तो प्रैक्टिस जारी रखो. लेकिन मैथ्स के कुछ ऐसे, मैथ्स में 3 तरीके के क्वेश्चन हैं. एक ऐसे तरीके के क्वेश्चन है जिसको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे क्योंकि वो कॉमन सेंसिकल एकदम समझ में आ रहा है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस किए हुए हैं. एक ऐसे तरीके के क्वेश्चन है जो बहुत टाइम खाएंगे यार, और एक ऐसे क्वेश्चन है जो सॉल्व होंगे ही नहीं, होंगे भी तो गलत हो जाएंगे. तो पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो करो जो एकदम सॉल्व हो जाएंगे. मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अपने अब पहले, लेकिन राइटर की बात करने से पहले मैं एक बार राइटर की क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ.
कुछ समय पहले तक क्या था कि स्क्राइब जो है वो उसकी क्वालिफिकेशन डिफाइन नहीं थी, उनका इन्विजिलेशन अच्छा था। अब इन्विजिलेशन तो ऐसा होता है कि अगर आप कुछ और बोल रहे हो, राइटर ने कुछ और टिक कर दिया या फिर करने जा ही रहा है, तो दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। इन्विजिलेटर एक या दो होते हैं, कॉन्स्टेंटली आपकी कॉपी पे नजर गड़ाए रहते हैं, आप क्या कह रहे हो, राइटर क्या लिख रहा है, आप क्या कह रहे हो, राइटर कहाँ टिक मार रहा है, उस पर पूरी नजर रहती है। सो इस सेंस में राइटर ऐसा होना चाहिए जिसकी पढ़ने लिखने की क्षमता तो अच्छी हो, फ्लुएंटली पढ़ पाए, अच्छे से आपको बता पाए, पहला। दूसरा, वो फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट करने पड़ेंगे, बार बार एक एक चीज क्लैरिफाई करनी पड़ेगी, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो, उसमें पेशेंस हो। और भाई राइटर की पहले क्वालिफिकेशन थी कि उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, इन्विजिलेशन कर रखा था अच्छा। अभी 2017 में जो गाइडलाइंस आए हैं उसके हिसाब से यह है कि उसमें एक क्लोज ये है, द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब शुड नॉट बी मोर देन द क्वालिफिकेशन फॉर द एग्जाम। अब इस क्लोज को हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि राइटर ग्रेजुएट हो सकता है, क्योंकि द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एग्जाम इज ग्रेजुएशन, shouldn't be more than the qualification of the scribe shouldn't be more than the minimum qualification for the exam, तो वो ग्रेजुएट हो सकता है। अब कई लोग ये भी करते हैं कि जो मास्टर्स कर रहा है, ग्रेजुएशन कर चुका है लेकिन मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, उसको भी स्क्राइब की तरह यूज कर सकते हैं, वैलिड है, कर लेते हैं, और अंडर ग्रेजुएट भी यूज कर सकते हो। लेकिन राइटर जो है वो सिर्फ पढ़ने लिखने में अच्छा हो, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही वहाँ पे आपकी मदद कर पाएगा। अब ये राइटर के साथ प्रैक्टिस करने से, अपना राइटर होने से फायदा ये होता है कि राइटर को पता रहेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन CSAT में सॉल्व कर पाओगे, कौन से क्वेश्चन में आप टाइम लगाओगे, तो वो आपको वही क्वेश्चन पढ़ेगा जो आप सॉल्व कर पाओगे, तो उससे आपका टाइम बचेगा। अब मान लो आप 80 क्वेश्चन हैं, 80 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, उसमें 30 के 30 आप पढ़ के बार बार देखोगे हर क्वेश्चन को, टाइम बड़ा बर्बाद हो जाएगा, पढ़ने में भी तो टाइम लगता है। तो इसलिए फैमिलियरिटी विद द स्क्राइब हेल्प्स। अब रफ स्पेस पीछे दिया हुआ होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप राइटर से कह के यूज कर सकते हो, इतनी फ्रीडम आपको होती है कि आप राइटर से क्या लिखवाना चाहते हो, क्या गलन कराना चाहते हो, क्या प्लस कराना चाहते हो, वो आप करा सकते हो। लेकिन दिक्कत वही है, वो सब आप करा भी लो तो समय तो आपके मतलब आपकी प्रतीक्षा नहीं करता, तो चला जाता है। तो इसीलिए एक अगर फैमिलियर राइटर हो तो ज़्यादा अच्छा है। दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो स्क्राइब खुद लाओ, एक कमीशन से लो। कमीशन से स्क्राइब मत लो, ऐसा नहीं, कई बार तो बहुत अच्छे स्क्राइब्स भी होते हैं कमीशन के, पर क्योंकि आप फैमिलियर नहीं हो उनसे तो वो थोड़ा CSAT में काउंटर प्रोडक्टिव होगा। CSAT हो जाए तो GS और मेंस के लिए तो आप ऐसा राइटर जो अच्छे से लिख पाए, फैमिलियरिटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात जरा ध्यान में रखो। एनी अदर क्वेश्चंस ऑन दैट? यस सर। सर जैसे आपने कहा कि हम अंडर ग्रेजुएट स्ट्राइक को ले सकते हैं, क्या इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि क्या वो जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ना दिया हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कहीं पे भी क्योंकि मे भी वो भी हो सकता है कि UPSC का वो भी पहले दे चुका हो, भले क्वालिफाई ना हुआ हो, लेकिन क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो चाहे वो ऐसा भी नहीं लिखा है कि उसने, अगर किसी ने UPSC भी क्वालिफाई कर लिया वो भी आपका राइटर मुझे लगता है कि बन सकता है, क्योंकि कहीं पे लीगल प्रोविजन कुछ नहीं है। लीगल प्रोविजन सिर्फ इतना है कि उसकी क्वालिफिकेशन लिमिट कर दी गई है, बाकी कोई प्रोविजन नहीं है। पर वहां पे वही तो, उसका कोई फायदा नहीं होगा, वहां पे फायदा उसका इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको इतना स्पेस होता ही नहीं है कि वो उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने या UPSC देने इसका आपको कोई फायदा हो सके। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो जो है बस यही कर सकता है कि उसको पता चल जाए कि आप कौन सा क्वेश्चन कर पाओगे, वही क्वेश्चन आपके लिए पढ़े। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सारा का सारा परिश्रम स्वयं ही करना है। यस सर, थैंक यू सर। Sir? हाँ जी Sir, with regard to magazines, like reading magazines of particular coaching institute is enough, or
do we have to read original magazines like Yojana or Kurukshetra? Again, different things work with different people. Like Yojana and Kurukshetra are very good magazines. But if you're taking 2 to 3 hours to finish the Hindu, and you have to read for a static as well, where is the time to read them? So whenever you make a choice, Yojana is good. Why? Because Yojana has government's perspective. Kurukshetra and Down to Earth are very good magazines, very tempting. But again, there will be no time for you to read for your static portion and other optional and all that. So whenever you make a choice, you must proportionally distribute the time during the day. Suppose you get 8 hours, 3 hours for current affairs and 5 hours for the other preparation. If you get 6 hours, then 2 to 3 hours for current affairs, 2 to 3 hours. So you must be judicious and balanced in terms of, suppose you're reading The Hindu, you're reading Indian Express, you're reading Down to Earth, you're reading Yojana, you're reading Vision magazine, you're reading, the entire day will pass away and you will realize that you have read only one topic from different magazines and nothing has come. So again, limit sources, revise that source and be consistent. That's the key. So do not let be overloaded. Do not let yourself be overloaded with the stuff that you will not even open because you'll not get time. Is that clear? Yes. Thank you. Okay. Any other questions? Yes, sir. I have a question. हाँ जी. सर एक्चुअली जब भी हमारे स्टूडेंट्स लाइफ में एक्सपीरियंस कह लीजिए तो इसमें काफ़ी दो मोड आते हैं. एक रहता है जो हमारा डिस्ट्रैक्शंस होता है, सराउंडिंग्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है हाँ. कि तुमने ये नहीं वो नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है. सर राइट. आपकी लाइफ में भी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होंगे बट फ्रेंड सर्कल भी हमारा सेम नहीं रह पाता. तो इस करके सर हम ओवरकम कैसे करें कि कई हमारे ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं कि भाई IAS कैसे, मतलब कुछ भी ऐसे हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं. और हमारा जो सिलेबस होता है काफी वास्ट बताता है. इंस्टीट्यूट आजकल केवल अपना कोचिंग चलाने का सोचता है, बस ज्यादातर वो ये नहीं सोचता कि एस्पिरेंट्स को कैसे गाइड करना है बिकॉज दे आर नॉट अवेयर आवर लेवल. सो बिकॉज हमें कैसे मैनेज करना चाहिए. सो थैंक यू सर प्लीज. हाँ यार ये. और सर आप अपनी और सर आपने थोड़ी सी जो आपने डिफिकल्टीज फेस की हैं और हमें मतलब क्या नहीं करना है हमें और क्या करना चाहिए. सो प्लीज सर. थैंक यू सर. हाँ, आपका नाम क्या है? सुनील. यस सर, सुनील. राइट. यार देखो ये ना बहुत वैलिड क्वेश्चन है. बहुत ज्यादा लोग इस बारे में सोचते नहीं है क्योंकि वो फ्लो में बहते रहते हैं, जहाँ उनको हवा ले जाती है वहाँ चले जाते हैं अपने मतलब. लेकिन ये एक तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा तरीके के हैं ना. तो जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी कई तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं. तो सब में इन्वॉल्व रहते हुए तो सब कुछ नहीं हो पाएगा. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. जैसे मैं जो है बहुत लंबे समय तक अपनी लाइफ में ये डिसाइड ही नहीं कर पाया. जैसे मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, तो वहाँ हिंदी माध्यम का ही विद्यार्थी था. अंग्रेज़ी इतनी अच्छी थी नहीं मेरी, तो अंग्रेज़ी से बड़ा एक तरीके का फैसिनेशन था. तो फिर मेरे को अच्छे परसेंटेज मिले, इंटरव्यू अच्छा हुआ, जो एंट्रेंस होता है सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन मिल गया. तो वहाँ तो बड़ी अंग्रेज़ी मतलब थी, चलती थी, अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग मतलब पूरा कल्चर बहुत अलग था. कल्चरल शॉक लगा. तो उस बीच में फिर मेरे लिए अपने आप को स्टडीज़ पे फोकस रख पाना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं जीना चाहता था, एक्सप्लोर करना चाहता था. उनको फिर अंग्रेज़ी भी सीखनी थी, वो भी एक चैलेंज था. तो मेरे ग्रेजुएशन का बहुत लंबा समय उस कल्चर में असिमुलेट होने में, लोगों से उनके मतलब साथ आने में, अपने आप को उनके साथ सिंक्रोनाइज करने में, और उन लोगों के जो मतलब तौर तरीके हैं या फिर जो भी उनकी मतलब उनकी सोसाइटीज़ में और इवन DU में भी एडजस्ट होने में लंबा समय चला गया. और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी उसमें रहे. उन डिस्ट्रैक्शंस ने भी अपना रोल प्ले किया. तो काफ़ी लंबे समय तक मुझे ऐसा लगा ग्रेजुएशन में, इनफैक्ट 3rd ईयर तक, लाइफ में कुछ भी सब्सटेंशियल मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया. और फिर 3rd ईयर में थोड़ा अच्छा हुआ.
फिर अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि दैट वाज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो जरूरी था, जो भी आपके साथ हो रहा है उसका होना जरूरी है, जो घटित हो रहा है उसका घटित होना बहुत जरूरी है, तभी आप जो आगे बनने वाले हो बन पाओगे। तो मुझे लगता है कि जो कुछ लाइफ में हुआ वो जरूरी था, हालांकि बहुत टाइम लग गया। तो अगर आप थोड़े अवेयर हो कि डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा के रखना है तो इतना हो जाएगा कि आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। नहीं तो फिर खुद ठोकर खा के सीखते फिरोगे। तो उसके लिए 2-3 चीजें करनी जरूरी है। पहला तो दूसरे लोगों के अनुभव से सीखो। अगर दूसरे लोग ये बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करने से आप फंस जाते हो, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो, उनके अनुभव को इज्जत दो, रिस्पेक्टफुली उनको लेके थोड़ा सा बचो। दूसरा जो मैंने बताया, इक्वानिमिटी प्रैक्टिस करो। चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हुए भी इस बात की जागरूकता, इस बात का साक्षी भाव रहना चाहिए कि आप चीज़ों में अवेयर हो, लेकिन ये चीज़ें वो नहीं है जो आप चाहते हो और आपकी मंजिल कहीं और है। आपको कुछ कर रहे हो, लोगों के साथ है, पार्टी कर रहे हो, लेकिन आपको इस बात का सेंस रहना चाहिए कि पार्टी ही आपके लिए सब कुछ नहीं है, आपकी मंजिल कहीं और है और जैसे ही समय मिले वापस आ जाओ। तो ये चीज़ें, ये एटीट्यूड कह देना बड़ा आसान है, कल्टीवेट करना बड़ा मुश्किल है। वो कल्टीवेट कैसे करना है भाई, वो तो आपकी यात्रा है, मैं वो यात्रा आपके साथ कर नहीं सकता, परंतु बता सकता हूँ अगर ये लेना है तो ले लो, नहीं तो ठीक है। तो ये बात है इसमें। बाकी मेरे को जेएनयू में भी फिर दूसरा डिस्ट्रैक्शन, मुझे एकेडमिक्स बहुत प्रिय था और मास्टर्स तक, इनफैक्ट एमफिल तक भी मैं सोच ही नहीं रहा था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। मेरे को तो एकेडमिक्स में बड़ा आनंद आ रहा था, पर बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो एकेडमिक्स में एडोकिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे लोग हैं, अब एक किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था जो मेरे पास हुआ है कि भाई एकेडमिक्स और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कैसे चॉइस करें। तो एकेडमिक्स में क्या है कि बहुत ज़्यादा एडोकिज्म है, बहुत एडहोक पे फैकल्टीज़ लगे हुए हैं 15-15, 17-17 साल से, और उनकी कैरियर सिक्योरिटी, श्योरिटी और दूसरे जो अलाउंस और पर्क्स वो उनको नहीं मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, परमानेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। दूसरा, नेपोटिज्म और क्राइनिज्म भी बहुत आ गया है एकेडमिक्स में। मैंने ऐसा देखा, आई शुडंट बी सेइंग दिस, लेकिन कुछ लोग जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को फेवर करते रहे, उनकी अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, बाकी लोगों की नहीं हुई हैं। तो ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में हो गया। तो जो एक तो प्रोसीजरल फेयरनेस नहीं रही और दूसरा सब्सटेंस भी नहीं रहा। तो फिर मुझे 2016-17 के आसपास मजबूरी में यूपीएससी की तरफ जाना पड़ा और 2016 में पहला अटेम्प्ट लिया। तो पहले अटेम्प्ट में मैं तो ये समझ रहा था कि मैं तो 30 मार्क का हूँ भाई, मेरे से कौन क्या है, इतनी ज़्यादा मैंने ये कर लिया वो कर लिया। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मस्ती करता रहता था, सिर्फ 1 घंटे पढ़ के क्लास में टॉप आ जाता था। तो यहाँ तो यूपीएससी तो ठीक है, आम बात है, बाएं हाथ का खेल है भाई। इतने कम नंबर आए कि बताते हुए भी शर्म आ रही है। प्री में कुछ नहीं हुआ यार, एक मतलब सही से क्वेश्चन से सोल्व नहीं हुए। वापस 2017 का अटेम्प्ट सिंसियरली प्रिपेयर करना शुरू किया, लेकिन वो भी बीमार हो गया मैं, तो वो अच्छे से हो नहीं पाया। पर हाँ, मैंने एक बात समझ ली कि किसी भी चीज़ को या तो अटेम्प्ट मत करो, किसी भी क्षेत्र में, या तो घुसो मत, लेकिन एक बार फैसला ले लिया कि उस क्षेत्र में जाना है तो एब्सोल्यूट डेडिकेशन, होल हार्टेडनेस, और उसको अपना फुल थ्रोटल, पूरा का पूरा दम लगा के उसको अटेम्प्ट करो, या तो करो मत। तो अगर जंग लड़नी है तो पूरी ताकत से लड़ो। अगर एक पाँव एकेडमिक्स के क्षेत्र में, एक पाँव उसके क्षेत्र में सोच रहे हो कि दोनों जंग एक साथ लड़ोगे, दोनों जगह हारोगे। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। ऐसी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस का भी यही हाल है। आप एक जंग पे हो, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे ये सारी चीज़ें। इस देश में नौकरियां बची नहीं हैं। इस देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद हो, मतलब वो बून नहीं रहा है। इसलिए आपको बहुत ब्राइट लोगों से कंपटीशन करना है। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू रेस्ट एंड रिलैक्स एंड indulge yourself in all sorts of activities that are meant for other people, है ना? Yes sir, thank you very much sir. Welcome. I hope that helps you. Yes sir, life changing seminar होगा sir, नहीं नहीं, आप बस मेहनत करो, and I will always be there. I'm on there on Facebook, that suits me. I'm there on WhatsApp.
I'm there on Gmail also. This Gmail ID that I'm meeting from, Google Meeting from, is mine. You can, any of you, never ever hesitate. I'll be really happy अगर आप में से एक दो लोगों को भी मैं ग्रूम करके तैयार करके निकाल सकूं ना, तो I'll be really happy with that, क्योंकि we need people in there. Satyendra ji, is it possible for you to share your contacts, as in your Gmail and your phone number and your Facebook ID? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. So Gmail is Satyender Singh, SATENDER SINGH PANNU, Pannu, Satyender Singh Pannu @gmail.com. और फोन नंबर है 9319400119. And your how can people reach you on Facebook? Through your email or? They can like add me on Facebook, search for Satyender Singh JNU, they'll find me, or we can interact there. Or they can also visit satyendersingh.com. वहाँ मेरी contact details हैं, SATENDER Satyender Singh. ये नाम की स्पेलिंग सब लोग थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, SATENDER satyendersingh.com पे वो उन पे कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ पे भी मेरे, वहाँ पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी ऐड कर सकते हैं. आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी इन टच, क्योंकि कई लोग जो है वो सर्विसेज में जाके थोड़े से काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं. मैंने ऐसे एक दो लोग देखे, मैंने फेस किया, तो सीनियर्स सर्विसेज में थे, वो चाहते नहीं थे कि कोई और विजुअली चैलेंज आए. सो दैट्स अ वेरी बैड एटीट्यूड, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो उन्होंने अचीव कर लिया वो कोई और अचीव ना करे. एंड आई वांट टू ब्रेक दिस. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट you know more and more people walk in and they show their prowess, क्योंकि you guys are so bright, तो आप लोगों को you deserve the best in the country. तो इसलिए work hard and I will try to give your career a direction, जितना भी जैसे भी limited समय मिल पाएगा. Sir, I want to ask one more question. हाँ जी, हाँ जी. Sir, like I am planning for geography to take my as a optional. तो सर उसमें काफ़ी मैप और डायग्राम्स अगर समझ लिया जाए तो आधा कंसेप्ट वहीं पे समझ में आ जाता है किसी भी टॉपिक का. बट सर अभी वो मैप वर्क या डायग्राम समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. अगर उसको हम CSAT में जाते हैं तो रीजनिंग में भी कई क्वेश्चंस आते हैं जो कि डायग्राम बेस्ड होते हैं. तो सर उन चीज़ों को और मैप वर्क या डायग्राम को कैसे पढ़ाई की जाए? देखो, जो नॉन वर्बल रीजनिंग का हिस्सा ऐसा रहता है रीजनिंग में, अगर कभी आता है नॉन वर्बल रीजनिंग अगर आती है, जो उसमें उस केस में वो लोग क्या करते हैं कि विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए अलग से क्वेश्चंस देते हैं. तो जैसे 2018 में हुआ था, उन्होंने बोला था कि डेटा इंटरप्रिटेशंस के कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कि विजुअली इंपेयर्ड लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिक्टोरियल और वैसे हैं. तो उस केस में उन्होंने क्या किया था कि ये बोला था कि आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट मत करो, आप जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे उसके प्रोपोर्शनल मार्क्स जो है आपके उसमें ऐड हो जाएंगे स्कोर में. तो डायग्राम्स और ये फ्लो चार्ट्स वगैरह में मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं रहा हूँ, इसलिए आई विल नॉट बी द राइट पर्सन टू टेल यू कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. इट्स चैलेंजिंग इफ यू टेकिंग ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन एंड यू नीड टू हैव देम इन योर पेपर एंड प्रिपरेशन. तो इसके लिए भाई मैं आपको यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को इसका ज़्यादा बहुत अच्छा आइडिया नहीं है. तो ये समस्या कई लोगों को आ सकती है जो इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, जो ज्योग्राफी ले रहे हैं. ज्योग्राफी में इसका एकेडमिक्स मतलब जो टेक्स्ट है उसमें कितना रोल है, आई डोंट हैव एनी आइडिया. बट हाँ, आंसर राइटिंग में तो ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट. यस सर, थैंक यू सो मच सर. ओके. हेलो सर. हाँ जी सर, जैसे आज का ये आर्टिकल था जो आपने भी डिस्कस भी किया था कि जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म पे था, तो उसमें जो पॉलिटिकल इशू था, जैसे जो मुख्यमंत्री हैं वो उस मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को मतलब वो कर रहे हैं कि लोग ये गलत ह्यूमर फैला रहे हैं ऐसा. तो अपने क्वेश्चन में मैं जैसे मेरा है कि सर मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल नहीं रह पाती, तो मैं ऐसे दिखाऊं सर कि जैसे मैं उनका क्रिटिसिज्म भी ना करते हुए अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फ्लो में लिख सकूं. यही तो ये आर्ट है. गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्लियर भी हो जाएगा. जो आंसर
गुड आंसर। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी डिस्कस नहीं, एक तो पॉजिटिव ऑफ टाइम चल रहा था, दूसरा ये कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये आपको तभी यूज़फुल होंगी जब आप मेन एग्ज़ाम से 6-7 महीने पहले रहोगे। तो बट फिर भी जस्ट बिकॉज यू आस्क्ड द क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, एक बैलेंस्ड और कंस्ट्रक्टिव आंसर ही अच्छा आंसर होता है। अब भाई ये बात तो है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और हम लोगों में से कई लोग न्यूट्रल नहीं रह पाते, कई लोग, ज़्यादातर लोगों के कुछ ना कुछ डिस्पोजिशंस होते ही हैं। तो वहाँ लेकिन आपको बैलेंस्ड आंसर देना है, बैलेंस आंसर के साथ साथ ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन्स जरूर देने हैं, पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अपने आप में सबसे बड़ा ऑप्टिमिज्म यही है कि जैसे ही लोगों के अधिकारों की, लोगों की इंडिपेंडेंस की वो कर्टेल हुआ, वैसे ही a pillar of democracy stood up and took cognizance and replied and made sure that the freedom is not violated. So Indian democracy in that sense is very strong and we must यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो conclusion में, we must make sure that the institutional autonomy and institutional federalism या फिर the concept, the principle of checks and balance is maintained. तो इससे क्या लगेगा कि आप एक ऐसा आंसर देना चाह रहे हो पॉजिटिव नोट पे कि अगर हम चेक एंड बैलेंस इंश्योर करके रखेंगे, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अपना अपना काम करेंगे, तो एक ऐसा बैलेंस बना रहेगा कि ना तो लोगों के राइट्स वायलेट होंगे और ना ही एग्जीक्यूटिव की पावर्स ज्यादा कर्टेल होंगी, है ना। सो ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसा देखो यार, क्रिटिसिज्म तो जरूरी है, क्रिटिकली इवेल्युएट क्वेश्चंस पूछते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज करना है, लेकिन वो कहा था ना वसीम बरेली ने कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। देयर आर वेज टू पुट इवन द बिटरेस्ट ऑफ थिंग्स इन द स्वीटेस्ट ऑफ वर्ड्स। तो ऐसे शब्द ज्यादातर यूज होते हैं एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, और एज फार एज मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसी फ्रेसियोलॉजी यूज करो जिसमें ये लगे कि यू आर ओपन टू चेंज योर पर्सपेक्टिव गिवन दैट यू आर एक्सपोज्ड टू द न्यू इंफॉर्मेशन, बट एज फॉर द करंट इंफॉर्मेशन यू फाइंड योरसेल्फ इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्रिटिसाइजिंग। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, बहुत विगरसली और बहुत क्या कहते हैं उसको, हमें हार्शली क्रिटिसाइज नहीं करना है। देयर आर वेज टू क्रिटिसाइज थिंग्स इवन व्हाइल बीइंग इन अ सिविलिटी, मतलब सिविलिटी और कर्टसी प्रैक्टिस करते हुए जो क्रिटिसिज्म होता है वो क्रिटिसिज्म यूपीएससी एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं करना है, लेकिन आगे कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन भी देना है। ऐसा नहीं बनना है कि अल्ट्रा लेफ्ट एक्टिविस्ट की तरह हर चीज को डिमोलिश करते चलो, स्टेट को डिमोलिश कर दो, फैमिली को डिमोलिश कर दो, गवर्नमेंट को डिमोलिश कर दो, नथिंग इज यूजफुल, एनआरकी में चले जाओ, फिर पूछे सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देना है, राइट? यस सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। हाँ जी सर, जैसे कि किसी की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग ना हो तो वो अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करे? जैसे हिंदी माध्यम में लिखने की कोशिश करो पेपर, अगर देर हो गई है, और अगर देर नहीं हुई है, 2-3 साल हैं, तो अंग्रेजी को अच्छा किया जा सकता है, लेकिन उसी भाषा में पेपर लिखो जिस भाषा में आप बहुत ज़्यादा सहज महसूस करते हो, जिसमें स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए आप शब्द प्रयोग कर सकें और अच्छे शब्द अपना इस्तेमाल कर सकें, उसी भाषा का चयन आपको करना चाहिए एग्ज़ाम लिखने के लिए, हिंदी या अंग्रेजी में से। अगर आपको लगता है कि हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो हिंदी में प्रयास करो। और हाँ, हिंदी में मुझे ये नहीं मालूम है कि भाई जो आपका ये साधन कितने उपलब्ध हैं, कितना मटेरियल उपलब्ध है, कितनी किताबें हैं या नहीं है, उसका आइडिया नहीं है। हिंदी में एक चीज़ जिसके साथ लोग संघर्ष करते हैं वो सामान्य ज्ञान जो है ना, करंट अफेयर्स वाला जो है समसामयिकी, उसका मटेरियल थोड़ा सा उनको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी वालों के पास तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू है। हिंदी में क्या हुआ है कि बहुत सारे अच्छे समाचार पत्र भी जो है वो थोड़े से पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा संतुलित विचार वो रखते नहीं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस करनी पड़ेगी, लेकिन समाधान तो हर चीज़ का है। अगर आपकी अंग्रेजी थोड़ी ठीक हो जाए तो अपना अंग्रेजी में पढ़ो और हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी है, मेहनत करनी शुरू करो, सब काम होगा।
है ना? थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, और Sir, कोई? हाँ जी। so many of us face this question at the end of graduation. Should we drop 1 year and prepare completely for civil services, or should we continue the preparations along with masters? So what should we do? Well, if you depends how confident you are. So if you're really confident, I will advise, it's not bad to drop 1 year. बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ना एक ग्रेजुएशन से मास्टर्स, उसके बाद रिसर्च, अगर जो कंटिन्यूटी चाहता है, फिर यार एक बार ड्रॉप किया ना तो फिर कंटिन्यूटी टूट जाती है। जैसे आई हैड अ फ्रेंड, उसने वो प्लान, अभी वो आईपीएस है झारखंड में, उसने वो प्लान बनाया कि ही विल ड्रॉप राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो हम लोग इधर आ गए, फिर हमने रिसर्च किया, फिर पढ़ाया भी। वो 6 साल से उसका प्री ही नहीं क्लियर हो रहा था, 5 साल से वो लगा रहा, वो उसका प्री ही नहीं हो रहा था। एक बार प्री क्लियर हुआ, उसने सारा क्लियर कर लिया। तो 1 साल कह के लिया, लेकिन 6 साल लग गए। तो एक अलग तरीके की बात है कि भाई आप तैयारी करने बैठोगे ना तो ड्रॉप करके तो फिर ड्रॉप ही है। और मास्टर्स करते करते करने में उसके साथ दिक्कतें ये हैं कि यार तैयारी फुल फ्लेजेड हो नहीं पाएगी अनलेस यूर टेकिंग अ कोर्स जिसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो कोई कोर्स होता नहीं है। तो ना तो मास्टर्स ही सही से हो पाएगा, ना तैयारी ही सही से हो पाएगी। दो नावों में एक साथ सवारी करने का प्रयास कर रहे हो। एक आइडिया ये है, तीसरा आइडिया कि भाई मास्टर्स कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, मास्टर्स के बाद यूपीएससी दे दो। बहुत लोग करते हैं, लेकिन ड्रॉप तो करना पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ये है कि एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड प्रिपरेशन इज नीडेड। ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, क्लियर तो मास्टर्स करते करते भी हो जाएगा, कुछ और करते करते भी हो जाएगा, वर्किंग ऑफिस में जाते जाते भी हो जाएगा। लेकिन जो रैंक और जो वो क्लैरिटी और जो मतलब जिस अच्छी रैंक के साथ, अच्छे ओहदे के साथ जो एग्जाम क्लियर होगा ना, वो एक्सक्लूसिव डिवोशन से ही होगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप करने का अगर कोई एकेडमिक्स का प्लान नहीं है तो कर दो, लेकिन एकेडमिक्स में जाने का प्लान है तो मास्टर्स के बाद देख लो। कई लोग होते हैं वो इधर जेएनयू में एडमिशन ले लेते हैं मास्टर्स में या बीयू में, या फिर फैकल्टी चले जाते हैं, लॉ फैकल्टी। फिर वो ना तो पढ़ाई उनकी हो रही है और ना ही एग्जाम ही अच्छे से हो रहा है, क्योंकि दोनों काम करने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि चीज़ें सेम है, सिलेबस सेम है, लेकिन यार वो बात नहीं है, क्योंकि जो मेथडोलॉजी है वो बड़ी अलग है। अब यहाँ तो आपको आंसर लिखना है 1000 शब्दों का, वहाँ आंसर लिखना है आपको 150 शब्दों का, यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है, तो मतलब वो बात आ नहीं पाती है। सो नथिंग विल एवर बीट एन एक्सक्लूसिव होल हार्टेड डिवोटेड प्रिपरेशन। कीप दिस इन माइंड। Okay. Right? Anything else? Yes, sir, I have a question. हाँ जी। So firstly, I would like to tell you that you are so inspirational and motivational for all of us. I would really like to say that this is the best event till now that I have attended. I'm really honored, but all of us are inspirations in one or the other way. हर किसी का अपना संघर्ष है। I'm sure आपका और जितने लोग यहाँ पे हैं सबका कोई ना कोई संघर्ष, कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई फाइट रही है। तो वी मस्ट मेक श्योर कि ये फाइट आगे तक जाए, यहीं पे नहीं रुकना है ना? Yes, sir. So, is there any limitation for number of attempts for PWD students? or यार aspirants? इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स हैं कि आप थक जाओगे अटेम्प्ट देते देते, चिंता ना करो। आई थिंक हैं 10 से ऊपर अटेम्प्ट्स हैं और शायद 42 इयर्स तक की एज भी रिलैक्स्ड है। उस दिशा में मत सोचो। अभी सिर्फ ये सोचो you're a general candidate and you know nothing else। अपने आप को PWD मान के अटेम्प्ट मत दो। कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है ना, निशाना लगाना है तो आसमान पे लगाओ, कम से कम नीचे आते हुए किसी पेड़ में अटकेगा। निशाना ही पेड़ पे लगा रहे हो तो घास पे अटकेगा नीचे आके। Yes. Right? Yes. Hmm. And sir, there is a web series. I don't know you have watched it or not, but TBF करके एक web series है that is based on a UPSC aspirants life. So how much it is related with देखिए reality? तो देखो हर कोई यूनिक है ना, तो हर किसी की यात्रा भी अनोखी है। दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। मान लो राजेंद्र नगर में रह के जो कमरा लेके लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, आप अपने हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हो,
हर किसी की यात्रा अलग अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग अलग है, तो जनरलाइज नहीं कर सकते किसी के एक्सपीरियंस को। हालांकि मैंने वो वेब सीरीज देखी नहीं है, तो पता नहीं, ये आई विल नॉट बी एबल टू आंसर कि वो उसमें सही है या गलत है। Okay, sir. Thank you. Sir, it would be great if you share your whole training experiences with us. ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में यार कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आई कैन शेयर, कई चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं दैट आई कैन नॉट शेयर। तो वो क्वेश्चन मैंने देखा था, बट डेलिबरेटली आई केप्ट इट आउट। ऑल्सो यू नो व्हेन यू गेट इनटू द सर्विसेज, तो जिस प्रकार से जैसे भी आपको एलोकेशन होगा, आई वांट टू यू नो कीप इट एन एक्साइटमेंट फॉर यू। तो जाओ वहाँ पे, खुद ट्रेनिंग जियो, खुद अपने एक्सपीरियंसेस करो, तो इसलिए वो मैंने शेयर नहीं किए थे। Okay, sir. है ना, अपने एक्सपीरियंसेस खुद जियो। अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर उसके लिए क्या कहते हैं उसको, वो कम हो जाएगा ना। हाँ सर, लाइक यूट्यूब वगैरह पे दिखाते तो बड़ा इंस्पायर करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन रियलिटी में कैसा रहता है वो रियलिटी में भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत ये सर वही हमें मतलब हमारे बहुत साथ सारी share चीज़ें बहुत ज़्यादा सिखाती हैं वहाँ। एंड इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। पढ़ाई लिखाई, इंडियन पीनल कोड पढ़ोगे आप, भारत दंड संहिता पढ़ोगे, पूरे भारत का दर्शन करोगे, और बड़े बड़े लोग आपसे मिलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिलोगे, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलोगे, बहुत कुछ सीखने वाला होता है ना। I think now there are no questions. Sir, Who is I have asking? a question. Sir, you tell about you have a study of government school. Then after 12th, how do you work for English? देखो मैंने what I did, like I was very weak in English, but I was lucky enough to get a college जहाँ पे माहौल बड़ा अच्छा था. I started reading the like पहले तो मैंने क्या किया, the NCERT books that I had read in Hindi, I started reading them in English, and I read the English books of classes like 3rd, 4th, 6th, 10th. read the stories, read literature. फिर धीरे धीरे द हिंदू पढ़ना शुरू किया। उस शुरू में तो बिल्कुल समझ नहीं आता था, लेकिन बड़ा जैसे एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आया व्हेन आई वाज एबल टू एक्सप्रेस और राइट ऑन फेसबुक इन इंग्लिश, और यू नो टेल समबडी इन इंग्लिश, लाइक बड़ा मज़ा सा आया। तो फिर धीरे धीरे, ये मतलब एक दिन की कहानी नहीं है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे वो संघर्ष फिर आप अभिव्यक्ति होने लगती है। पहले जब आप अंग्रेजी सीखते हो तो क्या एक चरण ऐसा आता है कि आप हिंदी में सोचते हो और अंग्रेजी में अभिव्यक्त करते हो। फिर धीरे धीरे जब आप मेहनत करते जाते हो, धीरे धीरे पढ़ते जाते हो अंग्रेजी में, एक अवस्था फिर ऐसी आने लगती है जब आप सोचते भी उसी में हो जिसमें बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा समय लगता है, यात्रा बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली भी है, थोड़ा सा परेशान भी करती है, लेकिन उसका जो वो है ना, एक भाषा सीखने का अलग ही मज़ा है, अलग ही आनंद है। तो focus more on having a good grammar and read NCERTs, जो हिंदी में पढ़ रखी किताब उनको अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करो, देखो कि कैसे फ्रेसियोलॉजी यूज़ की है, कैसे एक्सप्रेस किया अपने आप को ऑथर ने, या अंग्रेजी में जो बात कही गई है वो हिंदी में कैसे कही गई थी। एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, स्टार्ट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और फिर रेडियो न्यूज़ वगैरह तो भाई वो तो ज़रूरी है, वो देखो सुनो। अब ये ऑल इंडिया रेडियो पे हिंदी समाचार 15 मिनट के आए, उसका 15 मिनट के अंग्रेजी समाचार आएंगे। कोई अगर थोड़ा सा जिज्ञासु होगा तो देखेगा कि अरे हिंदी में तो ये कह रहा था, इसके लिए अंग्रेजी में ऐसे कह रहा है। तो वो धीरे धीरे अगर आप धैर्य रख पाओ तो बड़ा आनंद आने लगेगा एक सीमा के बाद। So I think I think we have taken more time. So if they have any, you have already given your email ID and mobile number. If you need, you can these students can contact you personally. So sir, your lecture was these students were liked your lecture. So they were saying कि ये हमारा best session था। So बहुत times actually they were asking us to, मैम हम आप लोग हमारा ये प्रोग्राम करवाइए। So they contacted you and you gave us time. Thank you so much for that.
And on behalf of Lakshita, the Enabling Society Miranda House, I would like to thank you, sir, for giving such an inspirational session or interactive session to our students, with our student. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. It's been such a privilege being here, and मैं वहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, so I've been liking to interact with the students. तो बहुत अच्छा लगा, and I must say कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो. Please keep it up, and we need to groom these students and take them forward. तो बहुत अच्छी बात ये है कि the institution जिससे ये लोग आ रहे हैं वो इतनी responsibility ले रहा है कि उनको सही direction दे रहा है. I'm really happy to associate with you. Thank you, and sir. All the very best to everyone. Thank you, sir. Thank you so much. And sir, I would also like to acknowledge that I saw you in JNU, and actually I got motivated then also that because I heard you talking to someone. It was behind the JNU library, that is library canteen. And then I just wanted to have a glance ki who is this person talking, and then I noticed that sir, there was like you were blessed with a different like I would not say that it was a disability, but a different ability. So that motivated me, because at that time I was writing my MPhil and somehow I was getting I don't know how it's getting monotonous. So that day, and I admired you, and then I also got to know from one of my common friend that okay, you're the person. And when Purva told me that you are from JNU, I didn't know your name. But the time when I saw your poster, I was like, okay, I've seen. He's Satyendra, sir. So many congratulations, sir. I was not aware that you had cleared UPSC. I just knew that you were doing your PhD from JNU. So thank you, sir. Thank you, ma'am. That really means a lot. I'm happy to hear that. In fact, संघर्ष में मतलब हर कोई ups and downs आते हैं. There are days in my life when I just feel so low, feel so down, don't just feel like working. There are days when I feel so motivated. तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई extraordinary वो है. हर किसी की life में ups and downs आते हैं. I'm the happy self-motivation, sir, and we look around things that what can motivate. So I would say that yes, your oratory skill with your differently abled, it really inspired me that if you can do, why can I not do? Of course, ma'am. So that's हर the किसी kind को of motivation तो people should look for within. Everybody. yes, sir. Everybody is a unique story. It is, sir. Okay, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. And thank you for all students and the Union of Lakshita Society for making this possible. And it was actually indeed a life-turning session for all of us. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Bye, sir.